I think we can start. So I'm presenting my screen. Is it visible? Yes. Anna. Yes. So we'll go through few reports. Uh, of course, first would be the sales register. So you can see your GST wise sales in this report. It also includes sales return, your wholesale return, and the income whichever you have inserted in the evital RX. Right. So you can also view it with selecting your branches. So it's helpful in chain pharmacy too. And from here you can see your GST from the sales. The sales and purchase report combination. Later on we will go through the GSTR1 report. Okay. Same here is a purchase register report. It has purchase return and expenses. So whatever expenses you have recorded in the Evital RX, for those you can claim the GST. Like you have purchased the laptop for your pharmacy, so that you can include in your expense and you can take the input credit on that. So you can get the net purchase GST from here by subtracting purchase return from the purchase. After these two reports, we'll go through the GSTR1 report. GSTR1 report, we also gave the option to the multiple branches. So you can select your common GSTN. Like I have this GSTN in my 8 branches. So I select this GSTN, submit, and I'll take that download. We have also given the more options like in the some locality area, there are practice that zero or near rated sales should come in the exam tab, and in some locality we only show it in the B2Cs here. So for that we have given a setting, so you can do some kind of customization according to your practices. Your all wholesale will come into B2B, and there would be B2Cs, B2BA, B2CL, B2CLE. This would be the empty tabs. CDNR will consider the credit notes. Uh, then there would be the HSN summary. So major 5 to 6 tabs are important for the GST report filing. If you see the calculations that how GSTR1 is calculated, so here we have also given the calculation to the reports. So here you can see total HSN value is taxable sales minus taxable sales return, and GSTR 3B is equals to taxable HSN value is equals to outward taxable supplies. And after the GSTR1, we will go through the GSTR 3B. It's for the purchase. So here is also the option is given for the multiple branches, and we have given the option to show the purchase return in the two tabs. One is deduct from all other ITCs.
deduct from all other ITCs. Then in ITC, reserve others. So I'm selecting deduct from all other ITCs. It would be deducted from this column if I have selected that. And if I select in ITC reserve others, so it would come in the B section in ITC reserve others. So these are the locality practice. Depend according to your practices, you can change it. So these are GSTR 1 and 3B. Let's move on to GSTR 2A. So this is the most important report and also most useful report, I can say. So GSTR 2A gives you the information if you can take the credit from the distributor or not. So here we have given the compare option. Now in this, you have to connect to your GST portal. You have to allow the API access. You can see this in this GIF file. So after connecting to your GST portal, there would be one OTP verification for the security. After you verify your OTP and you give access to fetch this report, GST 2A report, what we do in the Evital RX, we compare the both the results. Whatever purchases you have done in the ERP and whatever you are fetching from the GST portal, we do comparison and we will show you that how different, where is the difference, which distributor haven't given you the credit, which distributor haven't uploaded your your sale, your purchase bill to his GST portal. So depending upon that, you can take the decision that should I consider this credit in this month or in the next month. We are also integrating GSTR 2B report. So it's currently under the development, but it's completely same as GSTR 2A, and it would be released by the next week. One more thing I want to say that you try to use GSTR 2A, so you will be also get familiar with the 2B report. Let me also give the update upon the GSTR 1. So in the GSTR 1, we are going to give the JSON format. Currently, it's in the testing phase. Once we get the confidence about it, we will going to release the JSON format. So these are the updates. I think we can open for the questions. हेलो। Hello. Hi, yes, sir. हाँ, Please एक्चुअली proceed. मैं सर जीएसटी के रिगार्डिंग एक क्वेरी थी, जैसे कि हम एक्चुअली में जैसे कि गुजरात के बाहर के अगर बिल बनाने हो तो उसके लिए सर है ना IGST सर लगता है। राइट सर। हाँ, तो फिर सर वो वाला ऑप्शन नहीं है आपके अंदर, तो फिर सर क्या होगा उसके अंदर फिर करना, मतलब कैसे मतलब रहेगा? सर आप कौन से बिल की बात कर रहे हो, मतलब B2C की बात कर रहे हो कि सर B2B की बात कर रहे हो? सर एक सर सर हम लोग B2C की बात कर रहे हैं। ओके। सर सर उसमें आप जनरली जीएसटी नंबर डाल के बिल बनाओगे। बट सर आप एक चीज़ सोचिए, जैसे कि हमारा सर एक्चुअली में सर है ना फार्मेसी स्टोर है ऑनलाइन पे भी, ठीक है। ओके। अब जैसे कि हमको ऑर्डर मिलता है जो मतलब कस्टमर्स रहता है, जैसे कि कंपनी सर नहीं है, जैसे कि सर आपके पास सर आपका खुद का सर जीएसटी नंबर होगा, मुझे बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास आपका खुद का सर जीएसटी नंबर होगा? नहीं सर, मतलब ऐसे कस्टमर B2C कस्टमर के पास नहीं होगा सर। हाँ, तो सर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास सर कोई कस्टमर भेजता है ऑर्डर, ठीक है, गुजरात के बाहर का, वो भी हम सर डिलीवर कराता है, तो सर उसके अंदर सर अगर हमको IGST ऐड करवाना है तो फिर सर कैसे होगा उसके अंदर फिर तो बिल सर वगैरह?
उस केस पे सर हमको प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये रिक्वेस्ट ले लेते हैं और इसके ऊपर काम करेंगे, और प्लेस ऑफ के सप्लाई के ऊपर से हम डिसाइड कर देंगे कि अगर ये गुजरात का है या फिर आउटसाइड का है। मतलब आपके स्टेट अगर डिफरेंट है तो हम उसके हिसाब से आईजीएसटी लगा देंगे, बट उस केस में आपको सिर्फ ये रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको उस कस्टमर का एड्रेस डालना है प्रॉपरली। तो अगर वो प्लेस हाँ ऑफ सर, सप्लाई प्रॉपर है तो उस एड्रेस तो हिसाब से सर हम है कैलकुलेट हमारे कर देंगे पास। सर। नहीं सर, वो सब तो प्रॉपर ही रहता है एड्रेस वगैरह। बस मुझे ये जानना था कि बिल के अंदर आईजीएसटी ऐड होगा कि नहीं होगा। अगर यस सर, अगर डेफिनेटली। कस्टमर सर अगर बोलता है, मतलब ऑर्डर भेजता है, मतलब वो बोलता है ऑर्डर वगैरह का, तो जैसे कि समझो कि अगर मैं बोलूँ जैसे आप हो, ठीक है, आप गुजरात के बाहर हो, तो आपने ऑर्डर करा, ठीक है, तो हम आपको माल भेज रहे हैं, तो आपके पास आपका खुद का जीएसटी नंबर होगा नहीं, ठीक है। राइट उस सर, सिचुएशन में हमको आईजीएसटी लगाना है। गॉट इट। हम क्या हाँ करेंगे बस। सर, हम बिल के अंदर तो ऐड कर देंगे इनवॉइस प्रिंट के अंदर। उसके अलावा सर हम जो जीएसटी रिपोर्ट्स है उसके अंदर भी ऐड कर देंगे, मतलब सभी जगह पे इंटीग्रेटेड रहेगा। ओके, मतलब सर ये चीज़ सर हम, मतलब कि सर अभी से ही कर कर मतलब पाएंगे ना? अभी से मतलब सर आप अभी हमको तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, आप तुरंत अभी से नहीं कर पाओगे। मुझे 1-2 वीक के का टाइम दीजिए, उसके हिसाब से मैं डेवलपमेंट करवाता हूँ और वो अवेलेबल करवाता हूँ सर। ठीक है सर। ठीक है सर। हाई यस बद्रीनाथ सर, प्लीज से। सर जीएसटी रिटर्न्स में JS1 फाइल चाहिए सर, वो नहीं है आपका सॉफ्टवेयर में। जीएसटी रिटर्न में सर कौन सा फाइल चाहिए? JS1 फाइल, JS1 जीएस वो गवर्नमेंट साइट में वो मांगेगा ना, फाइल रिटर्न करने के टाइम पे। जैसे सर अभी हमने जेसन फाइल सर। JS1 फाइल वो जीएसटी पोर्टल में वही फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है सर। हर मंथ ऑडिटर वही पूछता हमारे को। उसमें क्या है सर कि जैसे कि हम एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, तो जीएसटी सर पोर्टल से एक टूल होता हाँ है यूटिलिटी का, हाँ। वो क्या करता है कि एक्सेल इंपोर्ट करता है और आपको 1-2 मिनट में आपका जेसन जनरेट करने के करके दे देता है। अभी वो फाइल सिर्फ जेसन जनरेट ही नहीं करता, बट बहुत सारे वैलिडेशंस भी चेक करता है आपके, जो भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमको वो वैलिडेशंस यहाँ पे लाने पड़ेंगे पहले, तो उसके लिए हमको देर लग रहा है। हमने काम इसके ऊपर चालू कर दिया है जेसन फाइल का, बट जो भी वैलिडेशंस गवर्नमेंट के साइड से चेक होते हैं हम सारे सर वैलिडेशन इस तरह से ला रहे हैं ओके। ताकि आपके जीएसटी में कोई एरर ना आए। अभी अगर हमने यहाँ पे जेसन दे दिया डायरेक्ट वैलिडेशन के बिना, तो वो तो सीधे सीधा अपलोड हो जाएगा और फिर कुछ दिक्कत आ सकता है। तो इससे अच्छा क्या करें कि हम वो जो यूटिलिटी चेक करता है, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर जो चेक करता है, वो सारे चेक्स हम हमारे साइड पे ले आ रहे हैं। अभी और जीएसटी टूल में वो कर हाँ, लेगा सर। जीएसटी टूल में सर, वो आपको पता होगा ना सर, कभी पॉपअप देता है कि ये लाइन में गलती है, ये लाइन में गलती है। यस। तो सेम सर हमको हमारे साइड लाना है। उसके बाद हम सर वो वैलिडेशन के साथ आपको जेसन फॉर्मेट अवेलेबल करवाएंगे सर। ओके सर। ठीक है, दिस मंथ सर, बाय दिस मंथ वो हो जाएगा। आप नेक्स्ट जीएसटी रिटर्न सर जेसन से करोगे। ओके सर, ठीक। ठीक। हाँ यस सर, दिलीप सर बताइए। ओके। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सर मेरा ये ऐसा क्वेश्चन है कि अभी तक मैं ये पहली बार इसमें ई वाइटल में जीएसटी रिपोर्ट का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नया यूज़र हुई इसका। ठीक है सर। मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में हम लोग जो करते थे, मैं जीएसटी रिपोर्ट्स GSTR 1, 3B, 2A जितना भी ये सब जनरेट करता था और मेरे सीए को भेजता हूँ, मैं खुद जीएसटी फाइल नहीं करता हूँ। तो अभी इस केस में अभी हमको क्या करना होगा? जैसे आपने 2 रिपोर्ट बताई मुझे, 3 रिपोर्ट बताई, GSTR 1 था, 2A था और कुछ 3B था शायद, ऐसे ही था ना कुछ, तो 2-3 रिपोर्ट। तो वो राइट। तीनों ही रिपोर्ट सिर्फ जनरेट करके हमको उसको भेजनी होती है सीए को, फिर उसका काम हो जाएगा हमारा कि वो और भी कुछ पूछेगा? क्योंकि मैं उसको परचेज रिपोर्ट भी एक्सेल में अलग देता था,
सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न रिपोर्ट, ऐसा सब वो वाली रिपोर्ट भी एक्सेल में जाके उसको क्रिएट करके देता था। तो अभी इस सॉफ्टवेयर से हमको देने के लिए हमको क्या क्या देना होगा? अगर मैं नहीं करता हूँ जीएसटी का अपना फाइलिंग का काम, कोई और मेरे बिहाफ पे सीए करता है मेरा, तो मुझे यहाँ से क्या क्या देना होगा उसको अपने सॉफ्टवेयर से निकालना? ठीक है सर, आपके क्वेश्चन को सर हम दो तरीके से देख सकते हैं। और मैं एक आपको प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या दे सकते हो। और सर यहाँ पे आप अगर रिपोर्ट का सेक्शन खोलोगे, 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है सर? यस, विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे से सर आप रिपोर्ट्स का सेक्शन खोलोगे मोर में से जाके। हाँ। तो रिपोर्ट्स के अंदर आप जो परचेस की बात कर रहे हो सर, तो सेम वहाँ पे परचेस रजिस्टर, परचेस बिल्स करके रिपोर्ट है। आपको परचेस रजिस्टर में से आपको परचेस रिटर्न जो भी आप सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गो करके, ठीक है। और सेम आप अपने सीए को हैंड ओवर कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, वो जो है वही ना हाँ, सब? एक बेस्ट टेक्निक ये है सर इसमें कि अगर आपको ये रिपोर्ट मतलब ये रिपोर्ट आप बार बार देखते हो तो सर आप यहाँ को इसको फेवरेट कर दीजिए, यस सर, वो बताया तो आपके मुझे। फेवरेट में आ जाएगा। फिर सेल्स रजिस्टर में जाके सर आप सेल्स और सेल्स रिटर्न का रिपोर्ट भेज सकते हो। अगर आप होलसेल बनाते हो तो होलसेल का भी रिपोर्ट भेज सकते हो, ओके ठीक है। और Okay. जीएसटीआर 1 और 3B, ओके ये रिपोर्ट्स आपको भेजने होंगे। दूसरा Okay. सोल्यूशन ये है सर कि आप ये कर सकते हो कि आपके सीए को हाँ। आप ओनली इतने रिपोर्ट्स के एक्सेस दे सकते हो कि एक अकाउंट बना, क्योंकि अपना सॉफ्टवेयर क्लाउड पे है तो वो भी इस वेबसाइट पर लॉगिन करके कभी भी उनको जब रिपोर्ट चाहिए एक्सेस के लिए तो वो कर सकते हैं। अगर आपके इतना मतलब आपको म्यूचुअल ट्रस्ट है तो आप अपना एक लॉगिन शेयर कर सकते हो स्टाफ का, और उसमें सिर्फ 5 या 6 रिपोर्ट हो, जैसे कि जीएसटीआर 1, 3B, परचेज और सेल्स। ओके तो उस केस में सर आपको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे, कुछ भी रिपोर्ट में देख पाएंगे और Okay. आपका इंटरवेंशन नहीं रह सकता। ये ठीक दो है। चीजें सर। इसमें हमारा सेल जो होता है वो हम लोग सेल है ना कुछ जो B2C मेरा डायरेक्ट, ऐसे तो रिटेल स्टोर हुआ, होलसेल तो करते नहीं है, लेकिन रिटेल कस्टमर भी कोई कोई ऐसा होता है जो बोलता है कि मेरे को जीएसटी वाला बिल चाहिए, मैं क्लेम करूंगा या जो भी है उसको पक्का बिल चाहिए, उसका जीएसटी नंबर मेरे पास शेयर करता है, मैंने इसमें डाला है उसका कस्टमर अकाउंट में, तो वो वाला रिपोर्ट इसमें ही हो जाएगा। उसका कुछ अलग तरीके से मेरे को वो भी डाउनलोड करके देना होता है क्या, ऐसा करना पड़ता है हमको कुछ? नहीं सर, वो सर जीएसटीआर 1 में आ जाता है, वो भी आ जाता है ना विद जीएसटी नंबर वाला जो सेल है वो? विद जीएसटी नंबर वाला आ जाता है, वो सर होलसेल में आ जाता है एक्चुअली। ओके, तो उसके लिए मैं कोई होलसेल वाला रिपोर्ट ऐसा कुछ सेलेक्ट करना नहीं ना, जीएसटी 1 में हाँ, नॉर्मल होलसेल वाला रिपोर्ट आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें आ जाएगा सर। वरना नहीं आएगा वो? अगर नहीं करूंगा होलसेल वाला सेलेक्ट करूंगा नहीं सर, क्योंकि वो बिल भी होलसेल में ही बनेगा एक्चुअली। अच्छा, यानी हम लोग ऐसा वाला बिल बना नहीं सकते अगर मेरे पास होलसेल लाइसेंस नहीं है, तो ऐसा देखा जाए तो? वो सर एक्चुअली उसमें आप जिस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो हाँ उनको सेल कर रहे हो तो वो वाला बिल आप बना सकते हो B2B में सर। हाँ, वैसे ही वाला है मेरा, कोई रिटेलर को नहीं बेच रहा हूँ मैं कस्टमर को ही दे रहा हूँ, जिस कस्टमर को वो जीएसटी नंबर है उनके पास, और वो बोलते हैं हमारे जीएसटी नंबर के साथ में आप बिल बना के दीजिए हमारे नाम से, तो वो वाला क्या मुझे वो भी होलसेल में जाके करना पड़ेगा कि वो सर वो भी retail- होलसेल में जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जीएसटी टू जीएसटी बिजनेस कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली मतलब गवर्नमेंट Okay. में तो सर वो B2B गिना जाता है। अगर आप देखोगे जीएसटीआर 1 में तो वो भी B2B के टैब में ही आएगा। आप कोई भी अगर पीओएस यूज करोगे तो वो सारे जीएसटी नंबर वाले बिल आपके B2B के टैब में आएंगे। तो मेरे को वो होलसेल वाला जो रिपोर्ट जनरेट करना है, एक बार मेरे को वापस से प्लीज बता देंगे किसमें से होगा वो वाला मेरा रिपोर्ट जनरेट? ठीक है सर। आपको जाना है सर सेल्स रजिस्टर में। ओके। और यहाँ पे सर रिपोर्ट टाइप में आपको सेल्स के नीचे आपको तीसरा टैब मिलेगा B2B सेल्स, वो सिलेक्ट करना है सर। और किसमें? सेल्स रजिस्टर सर, जीएसटी रिपोर्ट में जाइए। जीएसटी रिपोर्ट्स में आ गया मैं, जीएसटी सेल्स रजिस्टर में आ गया। हाँ, उसमें रिपोर्ट टाइप जो है आपका सर B2B सेल्स सिलेक्ट कीजिए। उसमें मेरे पास मुझे जो दिख रहा है उसमें सेल्स है, फिर सेल्स रिटर्न है, फिर इनकम है, तीन ही है। क्योंकि सर आपने वो B2B का एड ऑन नहीं लिया होगा उसके लिए। ओके आप एड ऑन ले लोगे तो उसके बाद सर आप में ऐड हो जाएगा B2B सेल्स करके। ओके, तो वो लेना होगा तो ही वो वैसा वाला रिपोर्ट हाँ, ये वाला सर, यहाँ पे एक B2B करके मोर में फर्स्ट,
फिर ये ओपन हो जाएगा सर आपके लिए। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ यस यस ख्याति मैम बताइए। जस्ट यहाँ पे ये बताया है रिपोर्ट, वैसे ही कोई कस्टमर रेगुलर टैक्स पेयर है तो ही ये सब रिपोर्ट फिल करने हैं, अगर कोई कंपोजिशन में है तो उसके लिए हमारे पास कुछ है ना? हाँ यस वी हैव द कंपोजिशन रिपोर्ट फॉर दैट, तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो जीएसटी रिपोर्ट में हमारे पास एक और है कंपोजिशन जीएसटी रिपोर्ट। तो जो लोग कंपोजिशन में हैं तो वो यहाँ से टैक्स फाइल कर सकते हैं उनका। यहाँ पे से उनके रिपोर्ट्स के जितने भी पर्टिकुलर्स है वो यहाँ पे से मिल जाएंगे और सेम वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है रिपोर्ट सेक्शन में। फर्स्ट रिपोर्ट्स में यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में लास्ट वाला है कंपोजिशन रिपोर्ट। हेलो सर। हाँ यस सर बताइए। सर जो लोग कॉम्पोजिशन में है हम्म उनका प्रॉफिट कैसे दिखता है, मार्जिन कैसे दिखता है, किधर दिखता है 1% जाने के बाद? 1% से रेवेन्यू का होगा ना। हाँ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ओके, हाँ बराबर। तो सर किधर दिखता है वो? ओके सर। हाँ तो कैसे करना है सर? या ओके थैंक यू। सर हमें रिसेंट एक ट्रक लोड मंगाया था हाँ यस सर। नया शॉप में, उसमें जीएसटी रिवर्सेबल बेस में दिया सर। ट्रक का बिल है ना, इनवॉइस रिवर्सेबल जीएसटी का तो मेंशन किया, रिवर्स मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। फिर से बताइए सर आपने क्या मंगवाया था? ट्रक? ट्रक लोड सर, मेरा नया शॉप के लिए मटेरियल मंगाया था आयरन का। ओके उसमें ट्रक वाला इनवॉइस दिया बट जीएसटी मेंशन नहीं किया। हाँ जीएसटी यू हैव टू पे इन रिवर्स मैकेनिज्म। सर वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है? क्या मैडम? आपका जो ये एक्सपेंस हुआ है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है? यस मैडम, सेकंड स्टोर ओपन हो रहा, उसमें मटेरियल मंगाया था मैंने ट्रक में हरियाणा से। ओके, मटेरियल मतलब फार्मेसी प्रोडक्ट्स? यस मैडम, फार्मेसी का रैक्स है, आयरन रैक्स सभी उधर रेडी होके फैक्ट्री से आया है और एक ट्रक में आया था। ओके, तो उसको आपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया था? नो राइट? नहीं मैडम, नया शॉप का जीएसटी सभी बन गया, उसमें से मंगाया। उन्हें इनवॉइस में मेंशन किया जीएसटी आपको हमारे को पे नहीं करना, रिवर्स मैकेनिज्म पे आप डायरेक्ट पोर्टल में पे करना बोल रहे हैं। वो कैसे अभी इनवॉइस विदाउट जीएसटी एंट्री कर लेना, हमें कैसे एंट्री कर लेना?
वो इनवॉइस किस चीज़ का है? मतलब आपने बोला रैक्स है, मटेरियल उसका है? रैक्स, यस मैम, रैक्स है, रैक्स राइट? सो टैबलेट्स मतलब रखने फार्मेसी के लिए। प्रोडक्ट्स नहीं है। नहीं प्रोडक्ट्स नहीं है, रैक्स फर्नीचर तो के आप लिए। उसको सिस्टम में एक्सपेंस मैनेजर में एज़ अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ओके, वो जीएसटी कब पे करना मैडम पोर्टल में? वो रिवर्स मैकेनिज्म बता रहे हैं ना? मानव, एनी आइडिया अबाउट दिस? एक्चुअली मैम So ये आरसीएम कह रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सीए ही सॉल्व कर पाएंगे। I guess sir, we have someone from our team. तो मैं आपका डाउट लिख लेता हूँ और फिर मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा रिगार्डिंग, फिर मैं आपको कॉल बैक करूंगा। एक सर ओके, आपका स्टोर का पूरा नाम मुझे लिखवा दीजिए, जो भी आपने रजिस्टर किया हो इवेटल पे। रामैया, रामैया हेल्थ प्लस बल्लारी, रामैया हेल्थ प्लस। बल्लारी से कर्नाटका। ठीक है सर। ओके, नोटेड सर, डाउट लिख लिया है मैंने। मैं आप मतलब मैं रिवर्ट बैक करूंगा आपको। ओके सर। सर वो कब पे करना पोर्टल में? फाइलिंग के टाइम पे पे करना, अभी पे करना, एक बार बता दीजिए सर। श्योर सर। ओके। हाँ यस सर, हनीश सर बताइए। एक्चुअली जैसे इन्होंने क्वेरी रेज की थी, मतलब आरसीएम से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो जैसे एसेट्स होते हैं, जो हम जैसे नया फार्मेसी स्टोर ओपन करते हैं, तो उसमें जो रैक आते हैं, ये सब चीजें हम आप अपने इसमें डाल सकते हैं? मतलब असेट्स ये में नहीं डाल एसेट्स की सकते कैटेगरी सर। में है? हाँ आप एक्सपेंस में डाल सकते हो, अगर आपका कोई मटेरियल एक्सपेंस हो रहा है तो उसको डाल सकते हो सर। असेट्स आप नहीं डाल सकते। तो जो अगर हमने आपकी इसमें एक्सपेंस में डाल दिया, तो उसमें जो जीएसटी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलता है ना, मतलब एसेट्स पे? हाँ तो वो एक्सपेंस उस पे आपको मिलेगा, जो भी आप अगर एक्सपेंस डालते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, आपके सर, जीएसटी 3B में आ जाएगा सर। सर इनपुट लेने के लिए अच्छा, उसमें हाँ, मतलब वो जीएसटी मेंशन नहीं किया सर। एक्चुअली सर आपका जो है ना, उन्होंने आरसीएम कर दिया। आरसीएम का मतलब है कि आपको अपने हाँ आप ही रिपोर्ट करनी पड़ेगी बिल के साथ, और अपने आप ही क्लेम करना पड़ेगा। वो हाँ, जो है ना वही सर, आरसीएम, वही आप क्लैरिटी आरसीएम क्लैर सर्च करोगे ना, हाँ हाँ, वही सर आपकी ने प्रॉब्लम बता सॉल्व दिया, हो बट जाएगी। क्लियरली एक्चुअली वो क्लियरली मेरे को ऐसा करते नहीं है। बोलिए एक्चुअली सर। ऐसा करते नहीं है। आरसीएम तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे लगता होता है, मगर फिर भी उन्होंने आरसीएम कर दिया है। तो आप हाँ, आरसीएम कैटेगरी में ढूंढिए सोल्यूशन। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर द जॉइनिंग। थैंक यू सर।